Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Abbas Academy. Students, as you know, this chapter name is a physiography and drainage. So, first of all, you need to understand it is the chapter 3 of your 10th standard geography. So, जैसा कि आप जानते हो कि you are learning the differences and similarity between the two nations, that is our country, India and Brazil. So, what is that difference and similarities between our country, India and Brazil in terms of their physiography and drainage? So, first of all, you must understand the meaning of physiography. The word physiography की meaning क्या है? Then we will see the meaning of drainage, right? So first is the physiography. Physiography means the physical geography, or we can say the study of the features of the earth's surface, right? Up study of the features of the earth's surface means what are the features on the earth's surface? In the 9th standard you learn that different landforms form through the endogenetic movement as well as exogenetic movement, है ना. चैप्टर सेकंड आपने पढ़ा, चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ में इंडोजेनेटिक मूवमेंट एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं, कॉन्टिनेंट बन रहा है, देन माउंटेन बन रहे हैं. नाउ द सेकंड पार्ट इज अ ड्रेनेज. अब ड्रेनेज की मीनिंग क्या है? मीन्स द चैनलिंग ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, राइट. अब ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज कहाँ पर हो रहा है? ड्रेनेज का सिंपल मीनिंग ले लो तो द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना थ्रू द रिवर. रिवर में there are the lot of n number of rivers are there in India. One of the largest river is Ganga, that we will see. तो physiography of India क्या क्या है? That is the different features, mountains, plateaus, peninsular region. और उस पर ड्रेनेज इंडिया और ब्राजील का देखेंगे फिजियोग्राफी. और ड्रेनेज मतलब कौन कौन सी रिवर्स इंडिया में है बड़ी और कौन कौन सी बड़ी रिवर्स ब्राजील में है, that we will see in this chapter. So students, before going forward, you must keep in mind that learning geography without map is meaningless. So map is very necessary for study of geography. So that's why you can see in every chapter the map of India and Brazil is given. So it's a physical map of India is given. So India basically divided. So physical feature अगर देखे जाए, physiography of India, physical features of India is divided into 5 parts. Like this is the mountain part, then North Indian plains, Gangetic plain भी बोलते हैं, then plateau region, then coastal region, and as well as island region, right? Indian's island. So we will solve this. Observe the map given in figure 3.1 and answer the following question. In which direction does the region with an altitude of more than 6,000 meter lie in India? Altitude यानी that distance from the sea level, mean sea level, समुद्र से कितना ऊंचाई पर है, right? So 6,000 meter you can see here. The 6,000 meter the orange से orange color से indicate हो रहा है. अभी हमारे मैप ऑफ इंडिया में देखते हैं तो that is the orange color is 6,000. So obviously जम्मू कश्मीर region or we can say the northern India. So in which direction does the region with an altitude of more than 6,000 meter lie in northern India? Look for the south flowing river in the peninsular region. In which river basin does it lie? It lies in the Godavari basin. Next question, in which direction the slope of the region in the north shown in the dark green? That is in North Indian plateau or in northern India. Make a list of plateaus located in between the Aravalli range and Chota Nagpur plateau. Now you can see the Aravalli range. The Aravalli is our fold mountain that you learn in the 9th standard. Aravalli जो है, Aravalli और हिमालय दोनों ही fold mountain है, but Aravalli is a old fold mountain while the Himalaya is a young fold mountain. तो अब Aravalli और छोटा नागपुर के बीच में, that is the छोटा नागपुर plateau. छोटा नागपुर plateau के बीच में कौन कौन से रेंज है, प्लेटोज है? तो दैट इज द मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट दैट नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट. अब ये दैट इज द ईस्टर्न घाट. ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है. ईस्टर्न घाट में कौन सी पीक है? महिंदगिरी. यू कैन सी द महिंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. दैट इज द ईस्टर्न घाट ये है और फिर ये वेस्टर्न घाट है. और वेस्टर्न घाट से लग के ही वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न घाट से लग के ईस्टर्न कोस्ट है. जो वेस्टर्न कोस्ट है वेस्टर्न घाट से लग के, तो ये जो हमारे महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट का पट्टा है तो इसको कहते हैं सह्याद्री माउंटेन.
The next question, which mountains demarcate the deep plains of Brahmaputra? Deep plains of Brahmaputra, that is obviously the Himalaya mountain. अब आ जाते हैं कि आप सबसे पहले हिमालय माउंटेन देखते हैं. हिमालय माउंटेन ये हमारे फिजियोग्राफी में हमारे इंडिया का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद इंडियन प्लेन रहेगा. तो ये हिमालय माउंटेन जो है तजाकिस्तान में एक पीर रेंज है, वहां से लेकर दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक ऐसे पूरा ऐसा गया है. नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ तक के पूरा फैला हुआ है. तो वी कैन सी द पमीर नॉट जो कि तजाकिस्तान जो तो अफगानिस्तान के ऊपर का कंट्री है यहाँ पर करीब आएगा, वो वहाँ से लेके हमारे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट, हमारा जो मेन इंडिया नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर, फिर ऐसे इतने राज्यों से होता हुआ लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. सो दैट इज द माउंटेन रेंज एंड फिर यू कैन सी द पमीर नॉट इन द तजाकिस्तान टू द ईस्ट. इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. एंड हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज द फोल्ड माउंटेन एज वेल एज इट इज द यंग फोल्ड माउंटेन. वाइल द अरावली जो कि राजस्थान में है, अरावली किधर है? अरावली राजस्थान में है, ये भी फोल्ड माउंटेन है लेकिन ये ओल्ड फोल्ड. अब हिमालय माउंटेन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो सबसे ऊंचा पार्ट है तो उसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं मिडल पार्ट में. फिर जो सबसे लेसर हिमालय है दैट ग्रेटर हिमालय हिमाद्री को कहेगी. देन ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एंड जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालय का तो उसको शिवालिक कहेंगे, शिवालिक. इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज. नेक्स्ट टू शिवालिक आर द लेसर हिमालय और सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय है जिसको हिमाद्री कहते हैं. यानी वी कैन सी दैट जो सबसे ऊपर का एरिया है जो है ना दैट इज द हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, फिर बीच में लेसर हिमालय और सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो शिवालिक हिमालय है, जहां पर बहुत सारे जैसे टूरिस्ट स्पॉट लाइक यू हर्ड अबाउट द मसूरी, नैनीताल, शिमला दैट लोकेटेड एट द शिवालिक हिमालय. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हमने कुछ क्वेश्चन रह गए, अपने पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे. गिव रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स यू नो स्टूडेंट्स, नीलगिरी हिल देखो यहाँ पर है. नीलगिरी हिल लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जहां में मिलते हैं तो नीलगिरी हिल है. और नीलगिरी हिल तीन स्टेट में स्प्रेड हुआ है. कर्नाटक में, केरला और तमिलनाडु, 3 राज्यों में स्प्रेड हुआ है. इतना बड़ा नेशनल पार्क है, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीजेस. अब यू कैन सी द सह्याद्री हिल्स कहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है? नॉर्थ में, नॉर्थ महाराष्ट्र में. सह्याद्री हिल्स इज द नेम ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र. द विंध्या एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द विच टू रिवर बेसिन. विंध्या एक्ट, विंध्या रेंज, यहाँ पर आप विंध्या देखेंगे ना, दैट इज द विंध्या रेंज, ये विंध्या रेंज है ना, विंध्या और ये सतपुड़ा. विंध्या और सतपुड़ा के बीच से 2 रिवर गुजर रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो नर्मदा रिवर, दैट इज द नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर. अब आ जाते हैं फिजियोग्राफी ऑफ अमेजोन. व्हाट इज द रेंज ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन. अमेजोन रिवर बेसिन का ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कितना है? 200 मीटर, राइट. 200 to 500 मीटर we can write. Now what is the between which two highland is the Amazon river basin is located? Amazon river basin is located between the Guyana highland and Brazilian highland. ये 2 हाईलैंड के बीच में है. जनरली हमने देखा कि इंडिया में फिजियोग्राफी है माउंटेन, देन ये इंडियन प्लेन्स है ना, इंडियन प्लेन्स है. उसके बाद ये यहाँ पर डेजर्ट रीजन है, यहाँ पे पूरा दैट इज इंडिया इज लोकेटेड, दैट इज द मोर पेनिनसुलर प्लेटो है. पेनिनसुलर प्लेटो मतलब सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. हमारे देखिए हमारा जो इंडिया का मेन लैंड है यहाँ पे अरेबियन सी है, वेस्ट में, साउथ में इंडियन ओशियन एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, राइट. So that is that land body that is surrounded by water from 3 sides. It's called the peninsular region. Then coastal region, this is the western coast and eastern coast, and at the last Andaman Nicobar island, these are the islands group. इसके अलावा लक्षद्वीप भी आइलैंड है, बहुत सारे इस छोटे छोटे आइलैंड भी है. एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंडिया में देखिए पहाड़ है, इंडिया में माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन है. इसका हाईएस्ट 6000 to 8000 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर लंबा लेंथ तक के लंबा है वो समुद्र के मीन लेवल से. लेकिन ब्राजील में देखेंगे आप, अगर आप ब्राजील में देखेंगे राइट, तो ब्राजील में हाईएस्ट 1000 मीटर है, राइट, ब्राजीलियन हाईलैंड. तो 1000 मीटर. इसका मतलब क्या कि ब्राजील डू नॉट हैव सच अ हाई
माउंटेन, ब्राजील में ऊंची पहाड़ नहीं है, ऊंचे माउंटेन नहीं है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील. Next question, beside the Amazon river basin, where else do you find the region with an altitude less than 200 meter? So that is 200 मीटर से और छोटे कौन से इलाके हैं? That is the Guyana Highland, Amazon river के अलावा, right? Describe the plateau region with height of 200 to 500 meter through with the tributaries of Amazon. How in your own words? अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. द डिवीजन लाइज बिटवीन द हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, राइट. अब नॉर्थ इंडियन प्लेटूज क्या है? दैट द नॉर्थ इंडियन प्लेटूज आर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. यू कैन सी हियर लिखा हुआ है ना, प्लेन्स एरिया. ये प्लेन्स एरिया क्यों बना हुआ है? क्योंकि मोस्टली जो गंगा रिवर्स है कंटिन्यूअस, गंगा और यमुना, मोस्टली हिमालयन रिवर्स आर द पेरेनियल रिवर्स, जो कि जिसमें पानी साल भर रहता है. क्यों पानी साल भर रहता है? क्योंकि गर्मियों के मौसम में दैट हिमालय का स्नो मेल्ट होगा तो उसकी वजह से पानी बढ़ेगा गंगा रिवर में, यमुना रिवर में, और मानसून सीजन में रेनी सी बारिश का पानी आता है, तो इसलिए साल भर उसमें पानी रहता है. वाइल द पेनिनसुलर रिवर, लाइक हमारी जो गोदावरी रिवर है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सारी पेनिनसुलर रिवर है. तो इसमें पानी कब रहेगा उन रिवर में? ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हिमालय और प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन के बीच में है, राइट. अब जो हमारा इंडियन प्लेन्स है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक हुआ है? पंजाब, ये राजस्थान यहाँ पर है, इसके ऊपर पंजाब है. पंजाब राजस्थान वेस्ट से लेकर पूरा असम तक के फैला हुआ है, राइट. और बीच में एरावली यहाँ पे रेंज है ना, एरावली के ईस्ट में जो एरावली रेंज है, ये वाटर डिवाइड का रोल प्ले करता है. तो इससे क्या होता है कि जब मानसून की रेंज आती है, मानसून की अरेबियन ब्रांच आती है, राइट. ये एक अरेबियन ब्रांच आती है, एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आती है. तो ये वाटर डिवाइड का, और ये वी कैन से द अरावली रेंज इज द एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. मोस्टली आपने से अभी आप देखोगे कि सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ये सब हिमालय की पीक से ओरिजिनेट होकर ऐसे फ्लो होते हैं इंडिया में, पंजाब और राजस्थान, पंजाब स्टेट से होते हुए. पंजाब का नाम ही पंजाब इस वजह से पड़ा कि वहाँ से 5 रिवर गुजरती है. 5 रिवर कौन सी है? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, बीस. ये 5 रिवर पंजाब से गुजर के पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में जाती है. तो ये अरावली रेंज वाटर डिवाइड का रोल प्ले करती है. बाकी सब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मोस्टली 90% ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन द बे ऑफ बंगाल ईस्टवर्ड में. तो मोस्टली जो रिवर्स है, गंगा है, यमुना है, इवन हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रही है. तो यही एक रीजन है कि ये बहुत सारे बड़े इलाके को, बड़े रीजन को इरोड करते हुए, दिस रिवर्स आर इरोडेड सो मच रीजन्स, दैट्स व्हाई दे कैरीज विद देम विद द लॉट ऑफ पेबल्स, सैंड ड्यून्स, बहुत सारे रेत के पार्टिकल्स और लोडेड मटेरियल लेके जा रहे हैं, एंड दे डिपॉजिट, एंड दे दिस रिवर्स गंगा, यमुना, दे डिपॉजिट. यहाँ से या तो गंगा से गुजर रही है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भी आ रही है. ब्रह्मपुत्र गंगा से भी बड़ी है, लेकिन ये इंडिया में बहुत कम एरिया कवर करती है, इसलिए इंडिया में ज़्यादा इसका एरिया नहीं है. ज़्यादातर जो म्यांमार रीजन है और चाइना है और तिब्बत है, वहाँ से ज़्यादा गुजर रही है ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर अपने साथ जो भी सैंड पार्टिकल्स वगैरह, रेत वगैरह ला रही है, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है. यू कैन सी दिस रीजन. तो कुछ पार्ट इसका बांग्लादेश में गया है, कुछ पार्ट इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में है. तो ये इसके बाद आ जाता है समुंदर, सीज, बे ऑफ बंगाल. तो ये जो रीजन आप देख रहे हो, दैट इज द डेल्टा रीजन. डेल्टा क्यों कहते हैं? ये डेल्टा कैसे बना? यू कैन सी हियर द डेल्टा. जो मैंने बताया कि बहुत से दिस रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, दे कैरीज विद देम द लोडेड पार्टिकल्स, सैंड, पेबल्स एक्सेट्रा, एंड दे डिपॉजिट हियर. तो वहाँ से बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो रहे हैं, और यहीं से ये एरिया फेमस है मैंग्रोव ट्री के लिए और सुंदरी ट्री. सुंदरी इसलिए इसका ना, इस रीजन का नाम पड़ गया सुंदरबन. तो सुंदरबन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जहाँ पर हमारे एशियाटिक लायन भी मिलते हैं, एज वेल एज मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो बोटानिकल नाम है सुंदरी ट्री. तो सुंदरी ट्री मिलते हैं यहाँ पे. यू कैन सी द पार्ट ऑफ द सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हमारा मेनलैंड इंडिया. इसके बाद द सुंदरबन, दैट डेल्टा इज अ रीजन नियर द माउथ ऑफ द सी के पास रहता है. And I said about the mangrove tree or Sundari tree, that is it act as a barrier and it protect the mainland of the
अर्थ फ्रॉम द सुनामी और एनी एंडेंजर व्यूज, राइट। जैसे कि जो भी अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी व्यूज आती है, तो ये मैंग्रोव ट्री जो डेल्टिक रीजन में पाए जाते हैं उनसे मेन लैंड का बचाव करते हैं, उन लहर को रोकते हैं। अब इंडियन प्लेटो के नीचे, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं जो रीजन है जिसकी वजह से जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है तो बहुत सारे रिवर गुजर रही है, दैट्स वाई ये प्लेन रीजन। अब एक रीजन ये कारण भी है कि हमारे इंडिया में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश है। उसका कारण ये है कि बिकॉज द लैंड ऑफ द उत्तर प्रदेश इज वेरी फर्टाइल, वाटर इज अवेलेबल, गंगा रिवर, यमुना रिवर है, और लैंड जो है कंटिन्यूअस रिवर के फ्लो से वहाँ का रीजन जो है एल्यूवियल सॉइल मिलती है जो कि राइस के एंड व्हीट के प्रोडक्शन के लिए गुड है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड that the land is very fertile and mostly that region is mostly populated region। अब उसके नीचे जो है पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन ये एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है जो कि साउथ में, जितना हम साउथ में जाएंगे इंडिया के तो वो यहाँ पर आप देखो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसा है पेनिनसुलर रीजन। और वी कैन से द पेनिनसुलर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, राइट, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर रीजन। अब ये ऊपर अरावली रेंज इसको बॉर्डर कर रही है, ऊपर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इसको बॉर्डर कर रहा है, राइट में ईस्ट में ईस्टर्न घाट बॉर्डर कर रही है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट बॉर्डर हो रहा है, राइट। दिस इज द प्लेटो रीजन, दैट इज द आल्सो द सम पार्ट ऑफ दिस प्लेटो इज नोन एज द डेक्कन प्लेटो। उसमें बहुत सारी रेंजेस है, जैसे कि हमने देखा विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, हमारी ये वेस्टर्न घाट है, फिर वेस्टर्न घाट के बाद वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट के बाद ईस्टर्न कोस्ट, उसमें ईस्टर्न घाट की जो सबसे बड़ी है महेंद्रगिरी है, एंड वी कैन सी दैट द नीलगिरी हिल इज अ जंक्शन और इज अ जॉइंट बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, जहाँ पे मिलती है तो नीलगिरी हिल पे मिलती है। So there are some question in which direction do the Aravalli lie? Western part. In which direction do the Aravalli lie? Western part of India. Aravalli range act as a water divide between the east flowing river and west flowing river. Name the hill located on the plateaus to the east of Aravallis, like Malwa Plateau. We can see here the Malwa Plateau, then Budelkhand, then Bagelkhand. Yeah, we can see, right, if we write the Malwa Plateau, it will be correct. अब आ जाता है कि कोस्टल प्लेन्स। इंडिया हैज़ अ टोटल 77,500 किलोमीटर कोस्टल एरिया, यानी कि अगर देखा जाए इफ वी सी नियर 9 स्टेट रीजन, 9 स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द बॉर्डर विद द सीज, इंटरनेशनल सी वाटर से है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, लाइक दिस, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। तो ऐसे 9 स्टेट हैं इंडिया के जो कि वाटर, इंटरनेशनल वाटर शेयर कर रहे हैं। अब ये इसका जो टोटल डिस्टेंस है 7,500 किलोमीटर का है, राइट। अब वेस्टर्न घाट में, अब यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक बता दूं कि देयर आर वेरी फ्यू रिवर फ्लो थ्रू द वेस्टर्न अरेबियन सी में वेस्ट की जानिब बहुत कम रिवर फ्लो हो रहे हैं, जबकि ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न कोस्टल पे, बे ऑफ बंगाल की साइड में यहाँ पर इन दिस डायरेक्शन मेजोरिटी ऑफ रिवर फ्लो हो रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जेंटल स्लोप है, ऐसा स्लोप होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादातर रिवर यहाँ पर होगा। अब मोस्टली रिवर्स ये कवर ज्यादा डिस्टेंस कर रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, डेल्टा नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता है। वेस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा की बजाय इंस्टेड ऑफ डेल्टा यू कैन फाइंड हियर estuaries। If the question arise why the western coast have estuaries while the eastern coast have deltas, तो उसका रीजन ये कि river originating from western ghats are short and swift, hence they form estuaries not deltas, क्योंकि वो शॉर्ट होती है, बहुत स्विफ्ट होती है। While the eastern coast border the Bay of Bengal, it has formed a result of depositional work of river। तो काफी डिस्टेंस कवर करके आ रही है तो अपने साथ डिपोजिशनल जो पेबल्स है, सैंड है, वो डिपॉजिट करेगी वे ईस्टर्न कोस्ट पर। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड रिवर फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट। एज अ रिजल्ट डेल्टास आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। एट द लास्ट आइलैंड, अब लास्ट पार्ट है हमारा आइलैंड्स, राइट। हमारा जो आइलैंड्स का पार्ट है वो देखिए, तो मोस्टली इंडिया हैज अ लॉट ऑफ आइलैंड्स एट देयर कोस्टल आइलैंड, मरीन आइलैंड भी कहते हैं, लेकिन जो मेन आइलैंड्स डिवाइड हुए हैं अरेबियन सी आइलैंड्स एंड बे ऑफ बंगाल आइलैंड। अरेबियन सी में जो आइलैंड है वो मेन लक्षद्वीप आइलैंड है वेस्टर्न कोस्ट में, और ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि काफ़ी बड़ा आइलैंड है। और अंडमान निकोबार हमारा यूनियन टेरिटरी भी है, इसके अलावा लक्षद्वीप भी हमारा यूनियन टेरिटरी है।
अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे माउंटेन, ये समुंदर के आइलैंड्स इज नथिंग बट द माउंटेन ऑफ द ओशियन, राइट, वी कैन से द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द ओशियन। और दैट इज देन वोल्केनिक, अंडमान निकोबार आइलैंड के जो आइलैंड्स है दे आर इन वोल्केनिक इन नेचर। द बैरन आइलैंड इज वोल्केनिक आइलैंड, वो वोल्केनो होता है, वहां से वोल्केनो इरप्शन होता है। वाइल लक्षद्वीप आइलैंड पे कोरल्स मिलते हैं, एटॉल्स मिलते हैं, वाइल निकोबार आइलैंड में भी सम टाइम कोरल्स मिलता है। So I hope you understand. So this is the part 1 physiography, and in next part we will see the physiography of Brazil and drainage of India and Brazil. So if you understand, so please share this video more and more, so more and more students will be benefited.